आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 ओलंपिक्स ऑफ केरला आई लव माय इंडिया एपिसोड 57 कर्ली टेल्स। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके मैं लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Each snake boat is about 100 to 140 feet Wow. long with 100 of rowers synchronizing their rowing movements together so they can ऐसे cross the movies में distance देखा in the करते थे। shortest time. ये रेस I लगी am रही। at Nehru Trophy boat race in Kerala where thousands of Keralites have come together to cheer for their own teams. This is Kerala for you. प्यारा व्यू है। आई लव माय इंडिया स्नेक बोट रेस 2022। Good morning from Kerala. Well, finally the day has arrived, which has been on my bucket list for so long. Snake boat race happening today at 3:30 p.m. अब think सुबह के second or 9:30 बजे है, and it's best to be there by 10:30 to reserve a really good seat for yourself. And it's important to have a good breakfast because it's a long day with huge crowds. मुझे वहाँ दिख रहा है कि बहुत अच्छे से अप्पम बन रहे हैं। अब डोसा बनाना मुझे आता है. Never tried my hand at appam, so let's give this a go. Seaside Resort Marari Beach in Mararikulam is a tribute to the fisherfolk community and their gentle ways of life. A walking distance away from the beach, everything here, from cottages to the swimming pool or the restaurant, this Wow. place echoes the simplicity, Easy beauty to and community. harmony that underlie in Malabar's coastal cultures. My quaint little villa came with a private pool, a large bed and an outdoor shower. Well, my first ever appam. Looks really nice, crispy by the sides, fluffy from the inside. Excited to eat this now. You know, the reason why I chose to stay at Marari Beach Resort is, of course, you know, it's a beautiful property. But the other reason is that it's very close to Punnamada Lake, just about 30 minutes away. Exactly वहाँ जहाँ Nehru Trophy snake boat race होती है. अब snake सुनकर डर मत जाना. There's nothing dangerous about this. It's just that the boat is so long. It's called a snake boat. और उसी की रेस होने वाली है अब. So let's go. नेहरू ट्रॉफी बोट रेस शुरू हुआ था इन द ईयर 1952 ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूज इम्प्रॉम्प्टू विजिट इन द केरला डिस्ट्रिक्ट आलापुझा। तब से लेकर अब तक हर साल यहाँ बोट रेस हो रही है, where all the Keralites come together. This year is special because it's happening after 3 years, mainly Pandemic cancelled year, because of Kerala floods and the pandemic. But the energy here is totally making up for the loss. Well, रेस के एक दिन पहले इस बोट को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है टू मूव इट इन द पार्किंग यार्ड। एक दिन पहले पूरा इंस्पेक्शन होता है अबाउट हाउ गुड द शेप इज ऑफ द बोट। और आज सबने एक वर्शिप किया है अपनी ही बोट को। दे आर ऑल डूइंग लोकली परफॉर्म सेरेमनीज, प्रेइंग फॉर देयर विक्ट्री कि आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इनके लिए, दे आर ऑल एबल टू विन इट। So I'm rooting for this team जिसका नाम है इब्रा कोचिन। Let's all root for them. Well, the rains are usually the first sign for all the oarsmen to start preparing. जो नया टैलेंट होता है उन्हें मौका दिया जाता है टू एग्जिबिट देयर स्किल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर मोस्ट ओर्समैन। हर विलेज से अबाउट 150 बॉयज आर सिलेक्टेड, बॉयज एंड गर्ल्स और अदर ओर्समैन आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ओन विलेज फॉर द फाइनल रेस डे।
वेल वैसे तो इस दिन पर बहुत सारी रेसेस होती है, पर जो हाईलाइट होती है वो है स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट को चंदन वुलम भी कहते हैं, फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स रॉन्ग, बट वो 100 से 140 फीट लंबी होती है, विच कैन होल्ड अप टू 100 और मोर रोवर्स। उसके अलावा 4 हेल्प्समैन होते हैं, 25 चीयर लीडर्स होते हैं। वो सब इंश्योर करते हैं कि यू नो द बोट इज इन द गुड शेप, और जितना हो सके जो बोट्समैन हैं या द ओर्समैन हैं उनका हौसला हमेशा जिंदा रहे, and they are always cheering themselves. The back of the boat is much higher, looking almost like a cobra head, and that's why the name came about. And on the occasion of Onam, we celebrate the snake boat race. It is locally called Vallam Kali. Vallam means the snake boat. Now what is going to happen is you're going to witness the final for the Chundan Vallam, which is the largest boat. I mean, this is one of the largest participated event in the whole world actually. At an event about 400 plus, about 440, 450 people participate in that event, which each boat has about 110 plus people participating. They practice for a month. And each team spends more than 20-30 lakhs to develop the team. And Kerala Police has been winning consistently much before this COVID and other things. And this event is, of course, you can see the fervor. It's one of the, you can say, very unique to Kerala. And this is coming as part of the Onam celebration. And basically, if you see the physical activity like tug of war, this boating, all these things are part of Onam celebration. I think the race is just going to begin in next few minutes, where about more than 10 snake boats are queued up over there to see the sea of battles coming alive. This can easily be called the Olympics of Kerala. Oh my God, this is crazy. Look at the energy, look at the snake boats coming together. It's so close. I think सबसे इधर वाले There are around maybe 19 or 20 snake boats. From that, we cannot conduct the race for every boat at a time. So we distribute them into 5 sections. सेकंड वाली सबसे आगे थी. So while the energy and emotion is great, let's not forget the commercial aspect of it, because tickets go on sale weeks in advance. You will literally see sponsorship everywhere. So clearly, it is not just about people coming in together, but also has huge commercial reasons behind it. Well, thousands of visitors and Keralites have come to witness this spectacle. They are all cheering for their respective villages. Tourists have just come to see the sea of battle come alive. This energy is something. Well, race देखने के लिए there are lots of viewing points. You can be amidst the crowd right there, or you can also opt in to be at the viewing deck of Ramada, from where you can get an amazing aerial view of the entire boat race from the starting point to the finish line. Wow, that was quite an experience. Such energy pumping, adrenaline rushing kind of experience. You know, the competition was so neck to neck that it's very hard to tell who won. And I feel like this is one race that every Indian must experience once in their lifetime. So if you enjoyed watching the snake boat race with me, plan your trip next year to Kerala around the same time and enjoy Onam festivities along with the Nehru Trophy snake boat race. Until next time, it's me, Kamya Chani, signing off. भाई मेरा ख्याल है कि इंडिया को अब जितना एक्सप्लोर करने निकले उतना ही कम है. हर बार कुछ ना कुछ आपको नई चीज़, नई जगह, नया फेस्टिवल, कुछ ना कुछ नया जो है आपको होता हो वहाँ पर नज़र आता है. अभी ये आज मैं बात करूँ भाई नेहरू ओलंपिक्स, ये बोट ओलंपिक्स थी, मेरे लिए ये बहुत एक नई चीज़ थी. मैंने वैसे इवन कि मैंने कभी मूवीज़ में भी नहीं इस तरह का कोई सीन देखा यार. मैंने किसी मूवी में हो, मैंने नहीं देखा. आई थिंक बागी मूवी में है ये वाले सीन इस तरह से कि बोट्स वाले रेसिंग सीन की मैं बात कर रहा हूँ कि
इस तरह मैं कह सकती जैसे हूँ कि जैसे certain हम people- डिफरेंट मूवीज में देखते हैं ना कि डिफरेंट फेस्टिवल्स को जो है वो दर्शाते हैं किसी न किसी सीन में, उस तरह नहीं मैंने देखा। हो सकता है हम लोगों ने वो मूवी ना देखी वैसे हो। मुझे बागी सीन का भी याद, बागी मूवी के भी सीन का याद नहीं अगर देखा हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, चाहे बेशक। कोई भी टूर्नामेंट वो होता है, आई मीन वो स्टेट लेवल का हो या वो फिर हम देखें कि आपको इंटरनेशनली भी देखना हो, सो आप इंजॉय करते हो उन चीज़ों को, और इससे ये देखो कि बिजनेस कितना जनरेट होता है। जैसे स्पॉन्सरशिप इतनी ज़्यादा, उन्होंने बताया कि हर तरफ जो है स्पॉन्सरशिप आपको नजर आती है, टिकट्स जो है वो एडवांस में सेल हो जाती हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि, और मुझे लगता है कि प्रोडक्टिव भी लगती है कि आप इस तरह के जब अरेंजमेंट्स करते हो तो उससे लोकल लोगों को कितना ज़्यादा फायदा होता है। बाकी मैं बात करना चाहूँगी स्नेक बोट के एरियल व्यू की, मैं कहूँगी इंतहाई खूबसूरत थे, और वैसे मैं इंतजार कर रही थी कि शायद इसमें दिखाएं कि चारों में से जीता कौन है, लेकिन वो चीज़ नहीं मुझे पता चली। मेरा ख्याल है कि जो जैसे सेकंड वाले थे ना, वो जब जो एंडिंग पॉइंट था वहां तक पहुंचे थे, इस साइड से सेकंड वाले वो सबसे आगे थे, तो मुझे लगता है शायद वही विन किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सही तरह विन किए। तो आप ही हमें बता सकते देकर, जिन्हें जो इस चीज का जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो या जिन्हें पता हो इस बारे में। लेकिन भाई इस मतलब बोट के लिए, रेसिंग बोट के लिए आपको वाकई में यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और आपके मसल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हम लोग तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लगता है बाजू टूट जाते हैं। और पता है मतलब मैं ये बात सोच रही थी कि, और इवन ऐसा भी होता है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हो जो थोड़ी हार्ड होती है, तो आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर तो आपको नॉन स्टॉप मतलब चप्पू चलाते रहना है। असल में हमें आदत नहीं है ना सख्त काम करने की, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। वैसे चप्पू चलाने के लिए भाई बड़ी मेहनत और बड़ी ताकत यानी कि चाहिए आम इंसान को। नहीं मतलब अभी मुझे लगता है जैसे छोटी अगर रेस नहीं भी है, फिर भी मुझे लगता है चप्पू चलाने नॉर्मल ही आप बात करो, जैसे दरिया रावी की अगर बात करें तो चप्पू हमारे घर के पास तो नहीं, इनके हमारे शहर में वही है, दरिया रावी है जहाँ पर कश्तियां हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बाकी चप्पू चलाने में वही मेहनत लगती है, और ये जो अभी हमने देखा है इसमें तो जितनी स्पीड से चला रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो आपकी जो है ना बहुत ज्यादा वो काउंट करती है, एक्सरसाइज तो ऑफ कोर्स काउंट करती है। वैसे ये कि हम जैसे लोगों को जो है ना वो हमारी दर्दों के लिए काफी अच्छी है एक्सरसाइज। बाबा वहाँ पर ना दर्दें सही करने के लिए वो टूर्नामेंट नहीं करवा रहे। अच्छा मजे की बात बताती हूँ कि लास्ट टाइम पर जैसे मौजूद ने रावी की बात की, तो मतलब फ्लड जब काफी ज्यादा पाकिस्तान में आया हुआ था, तो रावी में काफी ज्यादा पानी था। तो वैसे बेचारे में पानी कभी कभी ही होता है, ज्यादातर नहीं होता। तो मैंने घर वालों को कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि पानी काफी आया हुआ है, तो चलो हम लोग भी जाते हैं, बोट में जाकर बैठेंगे। मेरे घर वाले डर के मारे बैठे ही नहीं, कहते हैं बैठने गए ही नहीं। हाँ गए ही नहीं, और बैठना क्या था, गए ही नहीं। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बात यहाँ पर ये कि सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं बचपन में बैठी हुई हूँ कि मतलब रावी में जब वो क्या बोलते हैं कश्तियाँ चलती थी ना, बोट्स अभी भी चलती हैं, वही तो गई कि बचपन में कहीं बैठी हुई हूँ, तब पानी बहुत अच्छा होता था और साफ भी होता था। अभी जो पानी है मतलब सैलाब आ जाए तो अच्छा होता है, नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं अभी होता। जो पानी है ना वो इस तरह के एक साइड पर गंदा पानी चल रहा होता है, और एक साइड पर जो है ना जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है वो चल रहा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई सारी बात है मैनेजमेंट की, अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, पानी इकट्ठा भी हो सकता है। बारादरी बनी वो इतनी खूबसूरत है ना, अगर ये इसको मेंटेन करें तो बहुत प्यारी बन जाए। लेकिन खैर मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रेस स्टार्ट होती है उससे पहले बोर्ड को देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं है पूरा, हाँ वो एक तरह से उसका ख्याल रखा जाता है। और दूसरी एक चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो शायद अगर मैं पहले मतलब वीडियोस बनाने से पहले देखती तो मुझे समझ नहीं आती, बट क्योंकि हम लोगों ने सनातन धर्म पर काफी सारी वीडियोस अब देखी हैं तो मुझे ये चीज समझ आती है कि जैसे उन्होंने वोट की, सबने अपने अपनी वोट की पूजा की, तो वो एक ग्रैटिट्यूड शो करना होता है कि उसके माध्यम से उसके थ्रू वो लोग रेस करने जा रहे हैं। सो मुझे अब ये चीजें समझ में आती है कि वरना एक आउटसाइडर के लिए होता है कि अच्छा ये इसकी वर्शिप कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज जो है बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हम लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं कि मे बी मैं अभी भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाई हूँ या नहीं कर पाई वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अब कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में जरूर आता है कि आप एक ग्रैटिट्यूड शो करते हो, हर चीज को नमन करते हो, इसलिए
इसलिए क्योंकि उसके थ्रू आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। बिल्कुल, मैं मानदी से एग्री करता हूँ कि जिन लोगों को चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता वो यही चीज़ें जो है सोचते हैं अभी भी, लेकिन जो चीज़ों को सीखने की इच्छा रखते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, नॉलेज जो है गेन करना चाहते हैं, वो वक्त के साथ साथ जो है चीज़ों को समझ जाते हैं। ओवरऑल मेरे लिए अगर मैं इस फेस्टिवल की बात करूँ तो एक काफ़ी डिफरेंट फेस्टिवल था। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आपको जो है ना एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं। बिल्कुल, वैसे मैं मौसम की जो पहले वाली बात है उससे एग्री करूंगी। उसकी रीजन ये है ना कि मैं अभी भी लोगों को देखती हूँ, जब लोगों के साथ बातचीत होती है ना, तो उनका एक बेसिक मैं कहूंगी कि पॉइंट यही रहता है कि उनको ये होता है कि वर्शिप की जा रही है, लेकिन क्योंकि डिटेल्स उनको पता नहीं होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो आज के टाइम में लोगों के अंदर देखी है वो यही है कि हम सिर्फ चीज देखते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हमें समझ में नहीं आता, ना ही हमने पढ़ना है। हाँ, किसी के थ्रू हम लोगों को बातों में अगर पता चल जाए तो हम अपना एक ओपिनियन जरूर बना लेंगे, लेकिन डिटेल क्या है मेरा ख्याल में वो जानना बड़ी जरूरी होती है। और जब हम खुद अपना होमवर्क करके किसी नतीजे पर पहुंचे तो मुझे लगता है कि उस पर हमें अपनी ओपिनियन बनानी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न ओवर द इयर्स बाय वाचिंग डिफरेंट वीडियोस, और वो भी मैं कहूँगी कि सनातन धर्म के बारे में जो वीडियोस देखी हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत मजा आया है ये वीडियो देखने का, और अगर हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में कुछ गलत बोल दिया है तो हमें करेक्ट कर देना, क्योंकि अभी भी हम एक ऐसे फेज में जो कि लर्निंग फेज में बोलूंगी, और आप जितनी चीजें सीखते जाते हैं आप उतना ज्यादा इंजॉय करते हैं। यार मेरा ख्याल है जिंदगी आपकी जितनी मर्जी लंबी हो ना, आप हमेशा एक लर्निंग फेज में रहते हैं। आप हमेशा जो है ना, यानी कि हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। पर पता है क्या, जब आप थोड़ी थोड़ी चीज सीख रहे होते हो, समझ आ रही होती है ना, वो खुशी बहुत होती है। मैंने ये चीज का मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने लिए भी फील होता है। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो इसी के साथ मैं इजाजत, मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।